بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت آباد یہ نرساپور کانسٹیٹنسی میں ہے۔ ہنومان جینتی کے جلوس کے دوران میں ایک بچے کے ہاتھ سے غلطی سے چپل گری تو اس گھر پر حملہ کیا گیا۔ اس گھر کے حصے میں فروٹ کی دکان تھی، ٹائر کی دکان تھی، جلا دیا گیا۔ ان گھر والوں کو نکال کر کوثر محی الدین صاحب ایک دوسرے مقام کو منتقل کیے اور 8 دن تک اس گھر کے لوگوں کو گھر جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ ایس پی سے میرے کو بات کرنا پڑا ایک دو تین مرتبہ۔ اس کے بعد وہ گھر کو جا سکے، وہ دکان بھی اب ان کی چل رہی ہے۔ نرساپور مومن گلی میں ایک گیس والے سے بحث ہوئی۔ بجرنگ دل کے لوگ آ کر جاوید نامی بچے کو بری طرح مارے۔ اس بچے کو جاوید کو لے جا کر ہم لوگ توپران میں رکھے ایک محفوظ مقام پر۔ وہ گیس والے اور بجرنگ دل والوں کو گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج الیکشن آیا تو رولنگ پارٹی میں کانگریس بھی ہے اور سابقہ میں جو حکومت میں تھے BRS ہے۔ آپ فیصلہ کر لو، میں کچھ نہیں بول سکتا اس بارے میں۔ ووٹ دینا آپ کا اختیار ہے، مگر اقتدار میں رہنے کے باوجود بھی حرکتیں ہوتی ہیں۔ حکومت میں رہنے کے باوجود بھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ جا کر ان کی مدد کر سکے۔ آپ بتائیے 2024 میں کسی کا سماجی بائیکاٹ ہو سکتا ہے کیا؟ جینور میں 20-25 دن سماجی بائیکاٹ ہوا۔ مجلس وہاں پر فروٹ کھانے کا انتظام کروایا ان لوگوں کو۔ آپ جا کر پوچھ سکتے جینور ٹاؤن کے لوگوں سے، آپ جا کر پوچھ سکتے میدک میں بقرعید سے پہلے کیا ہوا تھا۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین اور ان جگہوں پر کیا میں جینور میں جا کے الیکشن لڑ رہا ہوں؟ کیا وہ نرساپور میں وہاں پر جو جھگڑا ہوا کو الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پر؟ ناانصافی ہوئی، مجلس وہاں پر پہنچ گئی۔ میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ یہ اسمبلی کا الیکشن نہیں ہے، پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں ہے، بلدیہ کا الیکشن ہے، مگر زمینی سطح پر آپ کو آپ کے نمائندوں کی ضرورت ہے۔ اگر دوسری پارٹی کے لوگ ہیں ان میں اور مجلس اتحاد المسلمین میں فرق ایک ہی ہے کہ ان کی زبانیں اسی وقت کھلتی ہے جب ان کی پارٹی کے کوئی ذمہ دار لیڈر ان کو حکم دیتے ہیں۔ مجلس کا نمائندہ ہوتا ہے تو اس کے بول کر عوام میں لایا جاتا ہے کہ تم انتظار نہیں کرنا، جہاں پہ ظلم نظر آیا، جہاں پر ناانصافی نظر آئی، تم اپنی آواز کو اٹھاؤ اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ یہ لوگ جیت تو جاتے ہیں مگر منہ نہیں کھولتے۔ میں دیکھا ہوں پارلیمنٹ میں اتنے لوگ جیت کر آئے، کون سی زبان استعمال کرتے؟ نہیں وہ سیکولرزم، کا سیکولرزم؟ بھارت کی پارلیمنٹ میں صرف 4% مسلمان جیت کے سیکولرزم کامیابی ہے؟ ہر سماج کا نمائندہ کامیاب ہو گیا۔ بیکورڈ کلاس کی نمائندگی اپر کاسٹ کے برابر ہو گئی بھارت کے پارلیمنٹ میں۔ یاد رکھیے، ہمارے ملک کی جمہوریت کی تلخ حقیقت ایک ہی ہے، جس کے پاس اس کی آواز ہے، اس کے نمائندے کے روپ میں، شکل میں اس کے مسائل اور اس کی تکالیف کو سنا جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ رولنگ پارٹی کا ہے، وہ فلاں رولنگ پارٹی کا ہے، میرے بھائی یہ صرف دکھاوے کے طور پر ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ایک کپڑے کی دکان میں رکھتے نہ کپڑا پہنا کے، اتنا ہی کام ہے ان کا۔ گراہک کو بلانا، دیکھو ہم کپڑا پہنا کے رکھے، اس کے بعد ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اسی لیے میری آپ تمام صدبن گزارش ہے کہ ظہیر آباد ہو، سداسی پیٹ ہو، سنگا ریڈی ہو، کوہیر ہو، میدک ہو، تانڈور ہو، وقار آباد ہو، محبوب نگر ہو، نظام آباد، کریم نگر، جگتیال،
पेड्डापल्ली, कोरटला, मेटपल्ली, बेलमपल्ली, निजाम आबाद, भैंसा, आदिलाबाद, बोधन, मंजलिस को वोट दीजिए। आपकी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करिए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि फिरका परस्ती खत्म हो गई, याद रखिए इख्तिदार पर कोई भी आए, फिरका परस्ती का जहर बरकरार है। और फिरका परस्ती के जहर का सद्देबाब यह है, उसका तिर्याक यह है कि आप मंजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करिए। आप देखते हैं कि मुल्क में आसाम का चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बनाता है कि उसके हाथ में एक बंदूक है और वो गोली चलाता है और गोली जाकर एक शख्स है, दाढ़ी टोपी है, उसको लगती है। बताइए, एक चीफ मिनिस्टर आसाम का है बीजेपी का, और वो इस तरह का वीडियो डालते हैं बीजेपी के सोशल मीडिया से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वीडियो की सख्त मजम्मत करती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी देगी ताकि आसाम के चीफ मिनिस्टर के ऊपर केस बुक किया जाए। ये मुसलमानों के खिलाफ मजहबी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शाहीन अब्दुल्ला के नाम से, जिसमें पुलिस पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि अगर इस तरह के वीडियो या जबान से कुछ बोला जाएगा तो फौरन उस पर केस बुक किया जाएगा। और उस वीडियो में क्या बोला, आवाज आती है कि इमेज बनाया गया एक मुसलमान साहब का और क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ब्लैंक शॉट, पॉइंट ब्लैंक शॉट, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है कोई रहम नहीं, नो मर्सी। बताइए आप ये क्या है फिर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आए दिन कोई ना कोई वाकयात होते रहते हैं। हैदराबाद में जानवर लाया जाता है, हर जगह रोका जाता है। सुबह के 2 बजे, सुबह के 5 बजे किसको फोन करता बेचारा वो कुरैश बरादरी का आदमी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों को करता है। बरसर इख्तिदार के लोगों को फोन नहीं करता, उसको मालूम, क्योंकि वो लोग आने से डरेंगे, क्योंकि उनको सबके वोट की जरूरत है। मंजलिस को वोट की जरूरत है, मगर मंजलिस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, मंजलिस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को आपको अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना है। मैं यहां पर खड़े होकर आईडीएसएमटी कॉलोनी और शांति नगर के जिम्मेदारों को तयखुन दे रहा हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपके प्लाट्स बल्दिया की तरफ से दिए गए हैं। और ये कोर्ट को जाके ऑर्डर लाने वाला कौन है? कौन है वो शख्स? उन्हों भी साबिका रूलिंग पार्टी के जिम्मेदार। अब आओ बोलो कोई, मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आईडीएसएमटी कॉलोनी के घर वालों के साथ है, और जो भी कानूनी कार्रवाई में हम उनकी और मजीद मदद कर सकते इंशाअल्लाह ताला हम जरूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहां पर हमारे अतर साहब ने मुझे बताया कि जहीराबाद में एक टीटीसी कॉलेज के लिए नुमाइंदगी की गई थी मौजूदा कांग्रेस हुकूमत से और साबिका बीआरएस की गवर्नमेंट से, वो काम अभी तक नहीं हुआ। एक बीएड कॉलेज की यहां पर सख्त जरूरत है, और साथ ही साथ जो शादी खाना तोड़ा गया था, जहां पर हज के फाउंडेशन स्टोन रखा गया मगर काम शुरू नहीं हुआ। मुस्लिम शादी खाने का भी काम रुका हुआ है। कब्रस्तान की जमीन और देना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, तो कोई आपके वोट की अहमियत रहेगी, एक बैलेंस रहेगा, और आप जो इख्तिदार पर बैठा हुआ है उसको मालूम हो जाएगा कि एक ताकत है, एक मुतबादिल है, एक विकल्प है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में। अपने वोट को जाय होने से बचाइए।
याद रखिए, बिहार में मजलिस को रोकने की कोशिश की गई, मजलिस के 5 अरकान असेंबली अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। महाराष्ट्र में मजलिस की कामयाबी को रोकने की कोशिश की गई, 125 अरकान बल्दिया महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में कामयाब हुए। लोग यही आकर बोलेंगे इन्हों रूलिंग पार्टी है, उन्हों फुला रूलिंग पार्टी थे। याद रखिए, जिसके पास जज्बा होगा, जिसके पास मर मिटने की तड़प होगी, वही लोग कामयाब और कामरान होते हैं। इख्तिदार पर कोई भी आकर बैठ जाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो वाहिद पार्टी है जिसने नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर रेवंत रेड्डी तक कई चीफ मिनिस्टरों को देखा, कई आए, मगर अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चिराग को अल्लाह ने इसको रोशन किया, और ये चिराग बातिल के तूफानों में आज भी जल रहा है और कल भी जलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो जहीराबाद की आवाम, ये चिराग जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहती है, इसको तेल की जरूरत नहीं है, इसको तुम्हारे दुआओं और तुम्हारे आंसुओं की जरूरत है। अगर आज आप अपने वोट के जरिए मजलिस को मजबूत करेंगे तो ये आपकी ताकत और आपकी पहचान है। आज पूरे मुल्क में लोग बड़ी इज्जत की निगाहों से और उम्मीद की निगाहों से सरजमीन दखन की तरफ देखते हैं कि बरसों पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुसलमानों में एक सियासी क़ियादत बनाने का काम शुरू किया। आज मुल्क के कोने कोने में जाने का मौका मिलता है और लोग एक ही बात कहते हैं कि काश हमारे बुजुर्ग 40-50 साल पहले अपनी सियासी क़ियादत बनाने का काम करते तो आज हमारे पास नाइंसाफी हमको का सामना करना नहीं पड़ता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस के अगर ये 14 उम्मीदवार कामयाब होंगे तो याद रखिए बैलेंस ऑफ पावर आपके पास होगा। यहीं पर कई मरतबा मरहूम कायद सालार मिल्लत ने अपनी तकरीर में उस मशहूर जुमले को कहा, मैं आज आपसे कह रहा हूं, अगर मजलिस के 14 कॉरपोरेटर या 10 से ज्यादा जीत कर आएंगे तो इख्तिदार आपके पास होगा। जिसको चाहे आप तख्त पर बिठा सकेंगे और जिसको चाहे आप तख्ते पर सुला सकेंगे। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करो। याद रखो, जहीराबाद में आपके अरकान बल्दिया जीत कर आने की एक और वजह है, मार्च अप्रैल में SIR होगा। बीजेपी SIR को शहरियत से जोड़ रही है जो सरासर गैर कानूनी है। NPR NRC का ताल्लुक शहरियत से है, मगर बीजेपी SIR के जरिए हमको अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा तो नोटिस आएगी, डॉक्यूमेंट लेकर आओ। कौन ला के देगा, कौन दौड़ेगा? ये बरसर इख्तिदार के दुम छल्ले करेंगे काम, ये करेंगे। जिनको एक फोन हैदराबाद से आ गया, उनके पास का है तो घर से निकलना तो छोड़ो, बैतुल खला नहीं जाते ये लोग। मजलिस को जिताना जरूरी है। SIR होगा मार्च अप्रैल में, डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप खुद दिल पर हाथ रखकर सोचो, जब जरूरत पड़ेगी तो आप इनको बोलेंगे या अथर को या असदुद्दीन ओवैसी को फोन करेंगे। मैं कई जगह पर बैठकर सुना हूं, फसाद हो रहा था जयनूर में, मदरसे में बैठकर मौलाना फोन मिला रहे थे तो दूसरे फोन से एक और वहां बोले, अरे मिलाओ ओवैसी को, मिलाओ उसको, मिलाओ ओवैसी को, मिलाओ। मेरे भाई, ये दिल याद रखिए, मजलिस अगर सामने रहेगी ना, ये तमाम के तमाम लोग अपने हद में रहेंगे, वरना सिर्फ आपको वोटर बनाकर आपके पूरे हुकूक को खत्म करके आप वोट डालो, जाके घर में सो जाओ। मजलिस ये बोल रही, वोट के जरिए अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाओ, लीडरशिप को मजबूत करो, अपने हुकूक को हासिल करो। इंदिरम्मा घर है, पेंशन है, ये सब लड़कर दिलाना है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन पूरे इत्तेहाद के साथ आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए और
11 तारीख के दिन पूरा गेम बदल देना है आपको इंशाअल्लाह ताला। पूरा गेम बदल देना है। एक एक वोट पतंग के निशान पर डालिए और जब ये इलेक्शन बैलेट पेपर पर होगा, जहां पे पतंग का निशान होगा वहां पर मोहर लगाकर एहतियात से उसको मोड़ के डब्बे में डालिए, एहतियात से, वरना क्या होगा, इंक होंगी, 2 जगह लग गया तो फिर काउंटिंग में हजरत शैतान के एजेंट बैठे रहेंगे। अरे नहीं नहीं, देखो पतंग पे लगा, 2 जगह लगा। तो एहतियात से अपने वोट का पूरा इस्तेमाल करिए। और वोटर लिस्ट में जितने नाम हैं, कितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में, हाथ उठाओ। ये नाम आपको वोट डालना पड़ेगा, ये प्रूफ होगा एसआईआर में। एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर ठप्पा लगाइए। याद रखिए, पार्टी को कामयाब करना है, ये आपकी ताकत रही है और इंशाअल्लाह ताकत रहेगी। ये दूसरे कांग्रेस, बीआरएस जितने भी हैं, ये पूरे शो बॉयज हैं, ये सिर्फ शो बॉयज हैं, ये दिखाने के हैं। मजलिस को वोट दीजिए और शेरों को कामयाब करिए, ताकि आपकी आवाज को, आपकी तकलीफ को, आपके मसाइल को मजलिस हल कर सकेगी। तो ये दूसरे इंडिपेंडेंट भी हैं, इंडिपेंडेंट छोड़िए, कोई बात नहीं, आप अपनी पार्टी को अपना वोट दीजिए। 11 तारीख के दिन सिर्फ पतंग पतंग रहना और बाकी सब खत्म होना। तो इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद पर जा रहा हूं कि 11 तारीख को आप लोग जहीराबाद में मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। नारे तकबीर।